So do a translation again. खड़े पे ताली बजनी चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि My आपका जो सरनेम है दिव्यकीर्ति, इसके बारे में लोग बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं। मेरी भी क्या अलग है, मैं वो बताना नहीं चाहता। बताइए ना, दिव्यकीर्ति के पीछे की कहानी आप बताइए। वैसे क्या क्या व्याख्याएं करते हैं लोग? मेरे को अपनी पता है कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो जो सम्राट अशोक था, हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा पीस, वो अपने जमाने का। आप इससे आगे सब कुछ लेके जाओ। जी। ठीक है, डन, थैंक यू। मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका in my name, the Divya Kirti, संबंध मतलब मेरी चॉइस से नहीं है। and my name is actually not from my choice, the Divya Kirti, मेरे फैमिली से है, परिवार से है। and this is related to our family. मैं जिस परिवार से हूँ वो परिवार आर्य समाज को मानता है। And you know, I am coming from that family, and my family is actually following the RSS party. और आर्य समाज की एक विशेषता है कि वो जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। And Arya Samaj and RSS Samaj is that kind of Samaj where they are rejected the religion. This party is not accepting or rejecting the religion. तो हमारी फैमिली में कास्ट सिस्टम काम ही नहीं करता है। So in our family the caste systems not work. हमारे बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति। And in our family our children are not giving knowledge about what is religious and all, because in our family we are following RSS, so we are not talking about, we are not giving sharing knowledge to our children about religion and all. जाति से हैं तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। And this is going on what we are following last 3 generation. जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं। My parent generation, like they are actually well civilian, like they are helping the society, and my father is also one of them. उनको हरियाणा की साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे उन्होंने। And my father is a great writer, and my father has written Haryana literature, and he got award also. तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएंगे। And at that time the literature period, it actually happened like we are going to add the children's name if we are writing or if we are becoming popular. तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। So that's why my father thought to keep his child name which is related to literature. तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ। And so the same thing happened with the 3 or 4 family in our all relatives. उनमें से एक हमारा परिवार था। And from that, and among that, my family was also there. तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ। And we are 3 brothers, and I am the smaller. I am the youngest one. और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग अलग हैं। And our all 3 of us, our surname is totally different from each other. बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम, And big brother surname is Yaduvanshi.
प्रियदर्शी है मेरा सरनेम। and middle middle brother, second brother is known as Priyadarshi. His surname is Priyadarshi, दिव्य कीर्ति है। and my surname is Devyakirti. और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। And why the surname is like this? Because of it resulted because of my father and my mother literature. That's why we have this kind of जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। but when I was very small, my name I used to write चक्रवर्ती. बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज हुआ कि बंगाल में ये एक कास्ट नेम है। And after a period of time, my father realized that this name is actually a caste name in West Bengal. तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे, So my father thought that it is a caste name in Bengal. So we don't want any kind of caste related feeling, religious related feeling or rituals feeling because they are from RSS. और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। So my father thought that it needs to be changed. और तब मेरे एक मामा जी जो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय, And at that time, my mama was there, which means of maternal uncle. He was a professor, तो प्रशांत उनका नाम था, and his name is. अब वो Prasad. नहीं है। And right now, he is not there. उनके बच्चों के नाम में दिव्य कीर्ति लगा हुआ था, तो उनसे बोरो कर And my maternal uncle, children surname is Devyakirti. के हमने, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास। So the same thing, my father also taken, and my father also kept my name Devyakirti. दिव्य कीर्ति किया। और 10th क्लास से पहले की बात है तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्य कीर्ति ही है। ये And before my 10th board certificates, if you will see all the names which are written Vikas Devyakirti only. रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये And this is not my pet name. This is the original and legal name. ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं, And यही this मेरा is not वास्तव। just a name like where the people are keeping for fun. No, it's a legal name. और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। And there is no my contribution for this name, and it actually given to from my parents. मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊँ और वो आज मौका मिल गया मुझे जोश टॉक्स के थ्रू। तो सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया, और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए, वो नई नई बातें निकल के आती हैं कि अच्छा नहीं उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी कुछ। जैसे एक कोट था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ये ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था, क्योंकि अब ये मौका मिला है तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। And this is right also. If there is a problem, you have to ask. ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ कि ऐसी अफवाहें हैं। And this is true also. Like few days before, I am also listening this rumors. लेकिन अफवाहों का समाधान कहाँ करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। Like where I can conclude this rumors. उन्होंने भी ये And सवाल I had मुझसे given interview also last year, Lelon Top. पूछा। आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा And they also, this is a media agency, they asked me also when I given the interview in Lelon Top. मैंने इसका जवाब वहाँ भी दिया, आज फिर दे देता हूँ। And- हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। And I'm not interested to
give answer. किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको If you want to think about a negative, so you can think. उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मज़ा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम And if any person is saying the wrong thing for me, and if any profit he is getting, so it's okay. I am ready for it. To do that, I am stopping here. Okay, thanks for listening me. Translation we have to do in this way only.